پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ تو الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اور الحمدللہ اس ماہ رمضان میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے پر ہمیں آمادہ کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو کجا من کجا، تو کہاں میں کہاں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور ہم کہاں، میں کہاں۔ مگر سرکار نے مجھ جیسے ناقص امت سے، گناہگار امت سے یہ کام لینا چاہا، شاید تو میں کرنے پر آمادہ ہو رہا ہوں۔ شاید انہی کا کرم ہو، میں تو یہی سمجھتا ہوں۔ جب تک کہ ان کا حکم نہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا، بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور خاص کر ایسے معاملے جو دین کے معاملات ہیں، وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سوا حکم کے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو گزشتہ صحبت میں میں نے، یعنی کل کی صحبت میں نے یہ بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے آگے جو معاملات گزرے تھے اس کی تفصیل میں نے بیان کی کہ ایک زمزم کا واقعہ بیان کیا کہ زمزم کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے آمد کے آگے ہی ان کے دادا حضرت عبد المطلب کے ذریعے سے عطا کر دیا، جو زمزم چھپ گیا تھا، غائب ہو گیا تھا، جس زمزم کے کنویں کو بند کر دیا گیا تھا۔ تو الحمدللہ دوسرا واقعہ یہ کہ اصحاب الفیل کا، یعنی اس کا واقعہ ہاتھی والوں کا واقعہ، یعنی ابرہا کا واقعہ جو کعبۃ اللہ کو ڈھانے آیا تھا اور وہ برباد ہو کے ختم ہو گیا۔ یہ دونوں واقعات میں کل پیش کیا۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں کہ سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت، یعنی کہ 12 ربیع الاول، بتایا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول یہ وقت، یہ دن، یہ تاریخ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ہوئے وہ دن تھا پیر کا دن، اور آپ کے والد محترم کا اسم گرامی تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاک بطنوں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں مبعوث فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شانیں ہیں، ایک آپ کی حقیقت ہے، وہ حقیقت کو نورانیت کہتے ہیں، اور پھر ایک آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں مبعوث ہو کر اپنے بندوں کو صحیح راہ اور صحیح انسانیت، یعنی انسان ہی اشرف ہے، اور پورے کائنات کے جو بھی بنایا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ تو انسان جس طرح فائدہ اٹھانا ہے اس کائنات سے، وہ فائدہ اٹھانا ہے، تو اس کے لیے پریکٹیکل زندگی بسر کرنے کے لیے
उनको मबऊस फरमाया हमारे दरमियान जो बशरियत में कामिल रहे। आपका पैदा होना हमारी तरह पैदा होना नहीं है, कुछ अलग है, और आपकी ज़िंदगी कुछ अलग है, मगर आपकी ज़िंदगी हमारे लिए इताअत है, हमको चाहिए कि उस पर से गुज़रें। तो जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मबऊस हुए, बशरियत का तकाजा लेते हुए इस आलम, इस कायनात में आए, वो पहले उसको मैं रखता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं नूरानियत की तरफ जाता हूँ। वो दिन था, रबीउल अव्वल का महीना था, 12 तारीख थी, और कुछ रावियों के मुताबिक 7 तारीख भी बताई जाती है, मगर बहुत सारे रावी और सबका इजमा 12 रबीउल अव्वल पर है। और सने ईसवी यानी एडी बोलते ना, कई चचा थे, कई चचा तो आपके थे, और आपके कई चचाओं में एक चचा थे अबू तालिब, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत किया करते थे। यानी हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से 4 माह कबल हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया, यानी हुजूर के वालिदे गिरामी का इंतकाल हो गया 4 माह पहले। वो भी कहाँ हुआ? मदीने मुनव्वरा में हुआ। और तारीख बताती है कि उस जगह में मदफून हुए जिस जगह का नाम अबवा था, जिस जगह में मदफून हुए उसी जगह में हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो भी वहीं मदफून थी। बात समझ में? तो एक ही कब्रिस्तान में हो गए। तो एक जब 4 माह पैदा होने के 4 माह आगे आपके सर से वालिद का सायान उठ गया, आप यतीम हो गए, यतीम पैदा हुए। इस आलम में जब आए वो यतीम रहे, यतीम पैदा हुए। बात समझ में आई? जब उस रात जब पैदा हुए तो कहते हैं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब यानी आपके दादा काबतुल्लाह में तवाफ़ किया करते थे, उस रात तवाफ़ में लगे हुए थे। और हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अकेली घर में थी, और उनके साथ देने के लिए 1-2 औरतें कुछ थीं। बात समझ में? तो नॉर्मल यानी हिस्ट्री राइटर्स कई होते हैं, कई किस्म के होते हैं। एक हिस्ट्री राइटर होते हैं जो नॉर्मल बातें जो लिख के ख़त्म आगे बढ़ जाते हैं, वो ये कहते हैं कि बस इतना कह के आगे बढ़ जाते हैं कि हुजूर ये तारीख में पैदा हुए। और कुछ हिस्ट्री राइटर होते हैं जो तहकीक करते हैं, तह तक जाते हैं, और तहकीक कर कर कुछ बातों को जो उस रात हुई थी उन बातों को बोलते हैं। मगर आम लोग भी जब लिखते हैं तारीख, उसमें ये बातें भूलते नहीं। कौन से? कि उस ज़माने में ईरान जो था वो सुपर पावर था। आज के ज़माने में अब यूएसए कहते हैं, आज यूएसए भी गिरता चला रहा है, अल्लाह करे बर्बाद करे। तो वो उस ज़माने में ईरान जो था वो मजूसियाँ थे वहाँ, यानी आतिश परस्त लोग थे, वो बादशाह था। और वो ईरान जो था वो सुपर पावर माना जाता था, और वहाँ बहुत कुछ इकोनॉमी थी, यानी पैसा बहुत था, और बाद वो एम्पायर था, वो दूसरों की हुकूमतों पर भी वो राज किया करता था, हुकूमत किया करता था। तो इस तरह वो मशहूर था ईरान, जिसे खिसरा कहते हैं। वहाँ के बादशाह को कैसर कहते हैं। बात समझ में? किसरा। तो वो एक महल था, बहुत बड़ा महल था जिसमें रहता था। तो ऑर्डिनरी यानी जो ऊपर से लिखने वाले भी ये चीज़ों को भूलते नहीं हैं, वाक़ियात को लाते हैं कि हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रात पैदा हुए, यानी इस आलम में जिस रात आए, ज़ाहिर हुए, उस रात
किसरा का महल जलजले की जद में आ गया और 14 कंगूरे गिर पड़े। महल के जो 14 कंगूरे होते हैं वो 14 कंगूरे टूटकर गिर गए। बात समझ में आई? तो बादशाह परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया, बहुत मुसीबतें, उस वक्त से वहां मुसीबतें शुरू हो गई। और दूसरी बात ये बताते हैं कि हजारों साल से जो चीज जलाई जाती थी, यानी एक उसे बुझने ही नहीं देते थे, वो जलती रहती थी, उसको पूजा करते थे आतिश परस्त। वो कभी बुझती नहीं थी, ना दिन ना रात, कभी बुझती ही नहीं थी, उसको जलाया जाता रहता था, जलती रहती थी। वो ऐसा जलते जलते हजारों बरस जल गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैंने एक किताब में पढ़ी ये बात कि आग में कई किस्म के जानवर भी पैदा हो गए थे। आग में, आग से जब बाहर निकलते तो वो मर जाते थे। इस तरह आग जलने की वजह से आग में ही कुछ जिंदगी पैदा हो गई थी। मगर जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, वो आग बुझ गई, वो आग बुझ गई। फिर उसको क्या नहीं कर सके, आग लगाने के बावजूद आग लगी नहीं, वो बुझ गई, सो बुझ गई। बात समझ में आई? तो इस तरह तो शवाहिदे नबुव्वा बोलकर एक किताब है जो हजरत नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको लिखा है। तो हजरत ने और भी वाक़ियात जो उस रात गुजरे थे वो सुनाते हैं, वो लिखते हैं कि फरमाते हैं कि हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अकेली थी घर में और एकाएक देख रही थी कि एक इससे आगे, यानी जब हमल होता है ना, जब ऑर्डिनरी औरत हामिला होती हैं, अब बच्चा जूं ही पेट में पलने लगता है वो वजनदार हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे का एक वजन लेकर चलना पड़ता है, वो खुद भी एक वजनदार हो जाती हैं। उसके चलने में भी आप देखेंगे कि बहुत मुश्किल से चला करती, क्योंकि वो वजन लेकर चलती। मगर हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं कुछ चीज़ लेकर हूँ, बल्कि मुझे ऐसा मालूम हो रहा था मैं खुद हल्की होती जा रही हूँ, कोई मुझे कोई उठाया कर रखा है, इस तरह मैं महसूस करती हूँ। ये आप कहती हैं, बात समझ में? ये आप कहती हैं कि मुझे कोई तकलीफ ही नहीं हुई, मुझे मालूम ही नहीं हुआ, बस इतना मालूम था कि मैं हामिला हूँ। मगर हमल में जो कुछ भी तकालीफें आती थी, मैं वो तकलीफ़ों को देखी ही नहीं, सही ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि मेरी जो वज़न है, मेरे वज़न भी कम हो गया है, मुझे भी कोई उठा कर लेकर जा रहा है। इस तरह मैं जब चलती हूँ तो इस तरह मैं महसूस करती हूँ, ये बताया गया है। फिर उस दिन रात को जब वो रूम यानी कमरे के अंदर थी तो देख रही थी कि एक आदमी की तरह, एक बहुत बड़ा सफेद लिबास में छत के जरिए से उतर रहा है। अब हैबत आ गई, खौफ आ गया, डरने लगी मैं। तो थोड़ी ही देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई एक परिंदा जो सफेद रंग का हो, वो परिंदा अपने पर से, बहुत बड़ा परिंदा है, वो अपने पर से मेरे सीने को सला रहा है, जिसकी वजह से मुझे वो खौफ जायल हो गया, यानी वो खौफ चला गया और मैं प्यासी हो गई। तो वो शख्स ने मुझे एक शरबत पिलाया। जब मैं वो शरबत पी तो ऐसा शरबत मैं पहले कभी पी ही नहीं थी। तो मैं शरबत पीकर अपने आप को बहुत सुकून महसूस की। देखते देखते मैं देख रही हूँ कि कुछ औरतें आ गईं जो अच्छी ऊंची ऊंची खत की थी, यानी उस जमाने में अब्द मुनाफ एक कबीला था अरब का,
जिसके औरतें बड़ी ऊंची ऊंची और खूबसूरत मानी जाती थी। अब्द मुनाफ का एक ये था। तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि अब्द मुनाफ की ही कुछ औरतें आ गई हैं, वैसी ही थी वो, और बहुत सारी औरतें आई और मुझसे घेर ली और मुझसे गुफ्तगू करने लगी, मुझसे बातें करने लगी, मुझे बहलाने लगी। और एकाएक एक आवाज आई कि हटो हटो। तो थोड़ी ही देर में मैं देख रही हूं कि एक सफेद कपड़ा जमीन से आसमान तक उड़ गया है। इस तरह मुझे घेरे में ले लिया, इस तरह मुझे वो कपड़ा बिल्कुल घेरे में ले लिया। और थोड़ी ही देर में मैं देखती हूं कि सचकी हो गई, मुझे कोई किस्म की महसूस नहीं हुई। तो तारीख में भी ये लिखा जा रहा है कि जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, यानी मेरे मतलब तारीख का जो ऑर्डिनरी तारीख जो लिखते हैं ना मुअर्रिखीन, वो लोग भी ये लिखते हैं कि हुजूर जब पैदा हुए, हुजूर के साथ कोई आलाइश यानी गंदगी नहीं आई। जिस तरह बच्चा होता है तो कई किस्म की गंदगियां भी बाहर आती हैं, तो हुजूर के साथ कोई नहीं, बिल्कुल पाको साफ और खतना होकर, खतना शुदा हुआ। तो यहां भी कहते हैं कि जब वो पैदा हुए फौरन सजदे में गिर गए। कौन? वो लड़का जो पैदा हुआ, वो लड़का सजदे की हालत में पैदा हुआ, सजदे में चला गया और उठकर उंगली आसमान की तरफ बताकर कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप देखिए भाई, जिसको मोहब्बत है और जो ईमान रखते हैं वो तो इन बातों को मानेंगे हैं। अब जिनका ईमान बहुत कम है और वो ज़ाहिरी तौर पर चीज़ों को देखकर मानने वाले हैं, क्योंकि ईमान ही है, गैब की बात है। अब वो कहेंगे ऐसा कैसा, ये कहाँ है, वो कहाँ है, वो बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मेरे साथ रहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जान रहा हूँ कि सुन्नी है और आशिक़ रसूल है। बस अल्हम्दुलिल्लाह ये जाने। और ये बातें, आज ये बातें सब छुप जाने की वजह से ही गड़बड़ाएं बहुत हो जा रही। बात समझ में आया? नॉर्मल की तरह सोच रहे हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह गोया कि एक नॉर्मल इंसान थे, जो हमारे जैसे, वैसा ही था उनका हाल। ये जो ख्यालात लेकर आगे बढ़ने वाले बढ़ते हैं, तो इसकी वजह से ईमान में बहुत कमी आती है। इन लोगों को ये तारीख़ पर पर्दा डाल दिया जाता है, ये तारीख़ नहीं बताई जाती है, ये वाक़ियात नहीं पेश की जाते हैं, जिसकी वजह से लोग उल्टे सीधे बातें करने वाले जब करते हैं तो मानने वाले मान लेते हैं। बात समझ में आई? तो ये सब चीज़ें जानना ये बहुत पीछे पड़ गई। उस ज़माने में लोग इन तमाम चीज़ों को सिखाया करते थे, कुरान पढ़ाते थे, कुरान के साथ साथ सीरतुन नबी सिखाया करते थे। और रबीउल अव्वल का जब महीना आता था, सीयर पढ़ने वाले पढ़ते हैं आज भी, मगर कौन समझता है? हाँ, पोलूर की मस्जिद में सीयर पढ़ते हुए मैं यहाँ सुना और देखा, मगर किसको भी खबर नहीं। वो सीयर में पूरे वाक़ियात हैं। बात समझ में आई? सीयर पढ़ने वाले पढ़ते हैं मगर कोई सुनने वाला नहीं है आज के ज़माने में। और उर्दू तो इतनी ख़त्म हो चुकी है कि फसी उर्दू अगर बोली जाए किसी को समझ में नहीं आता। जिस तरह आज अजमियों के लिए, यानी हमारे जैसे लोगों के लिए कुरान सिर्फ एक सुनने की चीज़ रह गई है। समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, बस पढ़ना है, सवाब मिलेगा, पढ़ रहे हैं, है ना। उर्दू भी यही हाल हो गई है, उर्दू का भी यही हाल हो गया है कि बस पढ़ने वाले पढ़ते हैं सीयर, क्योंकि उसमें फ़ारसी मिक्सड होता है, अरबी के अल्फाज और फ़ारसी के अल्फाज मिक्स होते हैं।
تو اب سمجھ میں نہیں آتا ہے، اشعار میں ہوتے ہیں. تو اب واقعات جو کچھ بھی یہ سب واقعات وہ سنانے والے سیر سناتے ہیں، مگر سننے والوں کو اب نہ ہوش رہا، کچھ بھی نہیں رہا. بس برکت کے لیے پڑھائی جاتی ہے، پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی کم ہوتا 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 بالکل ختم کے قریب ہو گیا. کہیں 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 سیر پڑھی جاتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے وہ فجر کے قریب وقت تھا. ابھی ستارے دکھ رہے تھے، بالکل اندھیرا ختم بھی نہیں ہوا تھا اور اجالا بالکل آ بھی نہیں گیا تھا. اندھیرا بھی تھا، اجالا بھی تھا، یہ دونوں ملے ہوئے وقت جو ہے نا فجر کہتے ہیں. تو فجر کا وقت تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں مبعوث ہوئے اور یہ بتائیں کہ جب میں آتا ہوں تو نور آ گیا، تو نور آ گیا تو ظلمت ختم ہو گئی. بات سمجھ میں آئی؟ تو کہتے ہیں کہ ایک ایسا نور چمکا، ایک ایسا نور چمکا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نور ایک ایسا نور چمکا کہ مغرب سے مشرق تک مجھے دکھنے لگا، میں دیکھی. بات سمجھ میں؟ تو یہی بات وہاں دوسرے بھی جو تھے ساتھ وہ لوگ بھی یہ باتیں کرتے ہیں. یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کچھ اور بھی تھے، وہ لوگ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم کو بھی اس طرح محسوس ہوا. بات سمجھ میں آئی؟ ہم کو بھی اس طرح محسوس ہوا. حضرت عثمان بن ابی العاص اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، یعنی ایک صحابی جن کا نام عثمان بن ابی العاص، ان کی والدہ اس وقت انہوں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھی. بات سمجھ میں آئی؟ انہوں فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے وقت حضرت سیدہ آمنہ کے ہاں حاضر تھی. اس رات مجھے ہر چیز آفتاب کی مانند روشن نظر آتی تھی. ستاروں کو میں نے دیکھا تو یوں معلوم ہوتے تھے جیسے میری طرف چلے آ رہے ہیں. فرماتی ہیں کہ میں جدھر بھی نظر پڑتی ہے میری نور کا ایسا عالم تھا کہ وہ نور اتنا پھیلا ہوا تھا کہ آفتاب کی طرح ہر چیز چمکتی ہوئی مجھے نظر آ رہی تھی. اور ستاروں کو جب میں دیکھتی تھی تو ایسا معلوم ہو رہا تھا ستارے میری طرف آ رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے ساتھ میں تھی. میں نے دیکھا کہ آپ کا نور چراغ کی روشنی کو مات کر رہا تھا. یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک نور جو نکل رہا تھا وہ چراغوں کو مات کر رہا تھا، یعنی چراغوں پر غالب آ جایا کرتا تھا. ایسا نور تھا، یعنی چراغ گویا کہ بجھ گئے ہیں، چراغ کچھ کام نہیں کر رہا ہے، چراغ کو مات کر رہا تھا. میں نے اس رات 10 علامات کا مشاہدہ کیا. فرماتے ہیں کہ میں نے 10 عجیب چیزیں اس رات میں نے دیکھی. اول یہ کہ حضور پیدا ہوئے تو سب سے پہلے سجدہ ریز ہوئے. تو میں دیکھ رہی تھی کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ سجدہ ریز ہو گئے، وہ سجدے میں چلے گئے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ جب سجدے سے سر اٹھایا تو تسبیح کہنے لگے. وہ تسبیح کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. تو کہنے لگے یہ دعا. تیسری بات یہ میں عجیب دیکھی کہ میں نے گھر کو آپ کے چہرے انور کے نور سے روشن و منور دیکھا. آپ جو ہی پیدا ہوئے پورا گھر ایک دم روشن ہو گیا. آپ کے نور سے، آپ کے چہرے اقدس سے جو نور نکلا، اس نور کی وجہ سے حضرت آمنہ کا پورا گھر
एकदम रोशन हो गया। ये मैं अजीब चीज़ देखी। फिर फरमाते हैं कि चाहरम चीज़ मैंने ये देखी, मैंने चाहा कि मैं आपको नहलाऊं, लेकिन हातिफ ने आवाज़ दी, ए सफ़िया अपने आप को जहमत न दे, क्योंकि हमने अपने महबूब को पाक साफ पैदा किया। होता है ना, बच्चा पैदा होते ही उसको नहलाया जाता है ना, तो नहलाने के लिए मैं जब आगे बढ़ी बच्चे को नहला दूं तो आवाज एक आई कि ऐ सफिया रुक जा, जहमत न उठा, क्योंकि हमने अपने महबूब को पाक साफ पैदा किया, उनके साथ कोई गलाजत नहीं। ये आवाज मैंने सुनी और रुक गई। फिर फरमाते हैं पांचवी चीज ये है कि जब मैंने ये मालूम करना चाहा कि लड़की है या लड़का, तो मैंने देखा कि हुजूर मख्तून और नाफ बरेदा पैदा हुए हैं। यानी मैंने जब देखा कि वो लड़का है या लड़की है तो देखा क्या थे, वो खतना शुदा थे, खतना किए हुए थे। फिर फरमाते हैं कि छठवीं चीज ये बताते हैं कि जब मैंने चाहा कि आपको किसी कपड़े में लपेटूं तो आपकी पुश्त पर मैंने मोहरे नबूवत देखी, और आपके कंधे के दरमियान देखा तो वहां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। बात समझ में आई? तो ये तमाम चीजें, छह अलामतें कौन बयान करती हैं? सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी, जो मदद के लिए हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर में थी। तो देख अजीब चीजें देख रही थी, ये मामला हुआ। अब आइए उधर, यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब का क्या हाल हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बयान है कि वो काबतुल्लाह के तवाफ में मसरूफ थे। कहाँ थे? काबतुल्लाह के तवाफ में मसरूफ थे। आधी रात गुजरी तो मैंने खाने काबा को मकाम इब्राहिम की तरफ सजदा अल्लाह अकबर की आवाजें बुलंद करते देखा। फरमाते हैं कि जो आधी रात गुजर चुकी, मैं तवाफ काबा कर रहा था तो मैं देख रहा हूं कि काबा मकाम इब्राहिम की तरफ सजदा कर रहा है, झुका हुआ है, और आवाजें निकल रही हैं, अल्लाह अकबर की आवाजें बुलंद, अल्लाह अकबर। और ये भी कहते सुना कि अब मुझे मुशरिकों की नजासतों और ज़माने जहालत की नापाकियों से पाको साफ कर दिया गया। काबतुल्लाह से ये भी आवाज आ रही है, क्या आवाज आ रही है? अब मैं मुशरिकों से पाक हो गया, अब मैं मुशरिकों से पाक हो गया, अब मुझे जहालतों से पाक कर दिया जाएगा, मैं पाक हो जाऊंगा। बात समझ में आई? तो हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के पैदा होने से आगे ख्वाब देखती हैं। फरिश्ता आके आपको कहता है कि जब तुझे लड़का पैदा होगा तो उसका नाम अहमद रखना। तो आपने अहमद रख दिया। बात समझ में? आपने अहमद रख दिया। और फिर मैंने देखा कि कई बूतें जो रखी हुई थी काबतुल्लाह में वो सब गिर गई थी। थोड़ी ही देर गुजरी कि एक आवाज आई, मुनादी ने ये सदा दी, आवाज आई, हजरत आमिना के बतन से मोहम्मद पैदा हो चुके। जब मैंने ये नाम सुना तो मैंने उनका नाम मोहम्मद रख दिया। लोगों ने मुझसे दराफत किया कि आज तक इस तरह का नाम तुम्हारे खानदानों में नहीं था, तो आप क्यों रख दिए? तो मैंने उनसे ये कहा कि वो मेरा जो लड़का, जो पोता है, वो पूरी दुनिया उसकी तारीफ करे, इसलिए मैंने उसका नाम मोहम्मद रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मालूम हुआ आप लोगों को?
تو یہ تمام چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی رات میں یہ تمام چیزیں ہوئی.